So students, welcome back. This is the second video for the chapter breathing and exchange of gases. तो इसमें आज हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? Exchange of gases. Exchange of gases जब बोलते हैं तो क्या? The first exchange is happening between the medium, the surrounding medium of the organism, in this case it is the human, and the body parts or the respiratory organs. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अ मीडियम एंड ऑर्गन के लिए भी क्या ज़रूरी है? एक प्रेशर इंग्रेडिएंट. एक्सचेंज कैसे होता है? थ्रू द नोज होता है, नेजल कैविटी एंड ये दैट इज़ द ट्रैक्ट, बट इट डिफ्यूजेज अक्रॉस अ प्रेशर ग्रेडियंट. तो गैसेस को अंदर जाने के लिए द प्रेशर हैज़ टू बी मोर आउटसाइड एंड लेस इनसाइड, एंड वाइल एक्सपायरेशन the pressure has to be more inside and less outside, right? So when we are talking of inspiration and expiration, हम जब एयर ले रहे हैं हम खाली उसमें से चुन के ऑक्सीजन और खाली चुन के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता. वी आर इनहेलिंग द एयर, राइट? उसमें से हमारा प्राइमरी एयर गैस जो हम प्राइमरी फोकस किस पे रहेगा? ऑन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दीज टू गैसेस. सो द एयर दैट इज सराउंडिंग आवर नोस्ट्रिल्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस. और ऐसे ही एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में द इंडिविजुअल गैसेस दे एक्सर्ट देयर ओन प्रेशर, और उस प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट गैसेस को क्या कहा जाता है? द पार्शियल प्रेशर. और ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है इन दैट मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द एयर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज डिनोटेड एज PO2. Similarly, the pressure of the carbon dioxide is denoted as PCO2. Clear? Now, exchange of gases में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? The structure of the diffusion membrane. तो exchange जब gases का होता है, what is the primary site for exchange? The primary site for exchange is the alveoli, right? और secondary site क्या है? The tissues. Okay? तो primary site में this is the alveoli. This is the capillary. And this is the basement substance. ये जो है दिस इज द एपिथेलियल लेयर ऑफ एल्वियोली एंड इट इज कॉल्ड द स्क्वैमस एपिथेलियम. दिस इज द स्क्वैमस एपिथेलियम, बहुत ही पतला, राइट? बीच में है द बेसमेंट सब्सटेंस. द बेसमेंट सब्सटेंस इज एन एसेल्यूलर लेयर, मतलब ये खाली एक मेम्ब्रेन है, इसका कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है. एंड दीज आर द epithelium. These are the epithelium of the capillary and they are called the endothelium, right? So this is the endothelium. तो ये पूरे को पूरे मिला के क्या बनता है? The diffusion membrane. And the thickness of this diffusion membrane is 0.2 to 0.3 micrometer. It's very thin. और इतना thin है इसीलिए the diffusion of the gases takes place very easily. Okay, यहाँ पे भी सुंदर से लेबलिंग किया हुआ था, but that's okay. मैंने वहाँ ऊपर कर दिया. So now, for diffusion to occur, there has to be a pressure gradient. So there is a book, there is a table given in your NCERT book about the partial pressure of oxygen and carbon dioxide at different places.
You can refer to that table, and also this diagram is taken from your book. Here also there is a representation of the flow of the blood and the partial pressure of the gases at different places. So let's begin with alveoli. Alveoli में partial pressure of oxygen क्या है? The oxygen that has come in, it is 104 micrometer of mercury. Clear है? और वहां पे this is the deoxygenated blood that is coming. Deoxygenated blood में PO2 क्या है? It is 40. As a result, PO2 यहाँ पे great है, यहाँ पे less, so oxygen diffuses. So now this becomes the oxygenated blood. It comes to the left atrium. Clear है? फिर left ventricle से through the systemic arteries, it is pushed to the tissues. Now, once the blood has been oxygenated, उसका PO2 कितना हो जाता है? 95. Okay? Now the blood goes here. The PO2 here of the oxygenated blood is 95. But the PO2 at the tissues is that 40 mm. तो जाहिर सी बात है PO2 of the arteries is more, तो oxygen diffuses to the tissue. हो गया एक तरफ. Now here oxygenated blood में PCO2 कितना है? सॉरी, हाँ, PCO2 कितना है? 40 है. और टिश्यू में PCO2 कितना है? 45 है. एज अ रिजल्ट यहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गया. सो नाउ दिस बिकम्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट गोज टू द हार्ट, टू द राइट एट्रियम, फिर वो राइट वेंट्रिकल पे जाता है, एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द pulmonary arch it again goes to the alveoli for the exchange of gas. So again the PCO2 here is 45 and the PCO2 here is 40. तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, that is why the carbon dioxide diffuses and that it is expelled out through the nostrils. All clear about partial pressure and how their partial pressure is different in different parts of the body and how this helps in exchange of gases? Now let us move into the transport of gases. तो आप पूछेंगे कि एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट पे फर्क क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो ये हो गया, बट ये ब्लड पे जो ये गैस कैरी हो रहा है वो कैसे कैरी हो रहा है? ओके, लेट अस लुक इनटू दैट. सो नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सो वी आर गोइंग टू सी टू, एक तो ऑक्सीजन का, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का. तो पहले हम ऑक्सीजन का देखते हैं. तो आउट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ओनली 3% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरिड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा. Clear? The rest of the 97% is carried as oxyhemoglobin in the blood. Now, blood में क्या है? We have the RBCs, right? And in RBCs we have these molecules of hemoglobin. और hemoglobin has two parts. एक तो globin, which is the protein, दूसरा है heme. These are the pigments, pigment part. This gives the red color, and each heme has 4 Fe, right? So each heme has 4 Fe, मतलब 4 irons, and each iron can bind with 1 molecule of oxygen. Thus 1 hemoglobin can carry 4 molecules of oxygen. Clear है? Now the bonding between oxygen and heme part of hemoglobin is reversible. रिवर्सिबल मतलब क्या? ये जितना जल्दी बॉन्ड करता है उतना जल्दी ये डिसोसिएट भी हो जाता है. नाउ लेट अस लुक इनटू फ्यू ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नाउ लेट अस लुक इनटू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन. नाउ
एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं. So when 4 molecules of oxygen are binding to one hemoglobin, what can we say? That the hemoglobin is saturated, right? और कोई ऑक्सीजन जाके वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता. So the percentage of hemoglobin that binds with the oxygen is called the percentage saturation of hemoglobin. Okay? और अगर हम एक कर्व बनाते, ग्राफ प्लॉट करते हैं between the percentage saturation of hemoglobin. Now you know what percentage saturation of hemoglobin is and partial pressure of oxygen. X axis में partial pressure of oxygen ले लिया और Y axis में percentage saturation of hemoglobin. The curve that we get is that of a sigmoid shape या S shaped. Now let us have a close look into this graph. ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ रहा है. हियर इन द लोअर साइड व्हाट डू वी सी? वी डू नॉट सी मच ऑफ एन एसोसिएशन और बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, राइट? यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम है. बट जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, वी सी दैट द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ hemoglobin has reached 100 maximum हो गया है, then it reaches a saturation point. यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है. So what does this indicate? The lower side indicates dissociation and the upper side indicates association. Clear है? Now ऐसा एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज 50%. मतलब कि आपके पास जितने सारे से हीमोग्लोबिन है, से फॉर एग्जाम्पल 4 है, ओके, 4 में से 2 हैव बिकम सैचुरेटेड. ओके, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर? एट दिस पार्शियल प्रेशर. उसको, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? P50. ओके. नाउ जब यहाँ पे लेसर एसोसिएशन है, व्हाट आर द कंडीशंस वी आर सीइंग? कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, इसीलिए परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी लो है. जैसे ये बढ़ रहा है वैसे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है. क्लियर है? तो अगर इफ दिस पार्ट इज शोइंग एसोसिएशन एज वेल एज देन द सैचुरेशन, तो ये कौन से वाले बॉडी पार्ट को दिखाएगा? द टिश्यूज या द एल्वियोली? एसोसिएशन कहाँ हो रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ है? एल्वियोली में है. सो दिस पार्ट इंडिकेट्स द ऑक्सीजन एसोसिएशन एट द एल्वियोली एंड दिस द टिश्यू. क्लियर? नाउ ये कर्व जो है इट में शिफ्ट टू द राइट or it may shift to the left. When it is shifting to the right, what does that mean? Now shift to the right means what? कि यहाँ पे dissociation ज़्यादा हो रहा है, and shift to the left means what? यहाँ association ज़्यादा हो रहा है. तो dissociation ज़्यादा कब होता है? When the partial pressure of carbon dioxide is more than that of partial pressure of oxygen. Clear है? So what happens is when partial pressure of carbon dioxide is more, the carbon dioxide, it dissolves and it forms carbonic acid. The carbonic acid then again breaks to give rise to protons and carbon dioxide. Okay? तो जब वो प्रोटोन, the moment it is breaking, it is increasing the concentration of proton. तो हाई प्रोटोन कंसंट्रेशन ज्यादा जहां है, ऑक्सीजन एसोसिएशन कम होगा. हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन कहाँ होगा? जहां पे PCO2 ज्यादा होगा. क्लियर है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा जहां पे है वहां पे क्या होगा? pH विल बी लेस विच मीन्स एसिडिक. और अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स इज टेम्परेचर. तो ये चारों के चारों फैक्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इन द टिश्यू
क्लियर है? और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ये ज़्यादा होता है जिसके लिए कि वो कार्बनिक एसिड बना रहा है, एंड द कार्बनिक एसिड अगेन डिसोसिएट्स टू फॉर्म प्रोटोन, दैट effect is called Bohr's effect. Okay, so the factors which affect the association of oxygen are the partial pressure of carbon dioxide, proton, the pH and the temperature. So the place where partial pressure of carbon dioxide is high, proton concentration is high, pH is low, and low pH means what? Acidic, and temperature is high. We get to see in the tissue. That is where the curve shifts to the right. All clear? Now, when the curve shifts to the left, it is just the opposite. Partial pressure of oxygen is high. Partial pressure of carbon dioxide is low. Partial pressure of carbon dioxide जहाँ low होगा वहाँ पे carbonic acid भी कम होगा, and dissociation of carbonic acid into protons and bicarbonate ions, and dissociation of carbonic acid into protons and carbonate ions भी कम होगा, तो वहाँ पे प्रोटोन कंसंट्रेशन कम होगा. प्रोटोन कंसंट्रेशन जब कम होता है pH इज हायर, विच मीन्स इट इज लेस एसिडिक. आई वोंट से कि ऐसा एक्सट्रीम नहीं होता कि ये बिल्कुल लोअर pH और वो हायर pH लाइक मोर देन 7. इट इज लेस एसिडिक. एंड टेम्परेचर इज हाई, सॉरी टेम्परेचर इज लो, सॉरी वेरी सॉरी. तो ये कंडीशंस हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन द एल्वियोली. एंड दीज कंडीशंस सपोर्ट द एसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन. इज दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्लियर? ओके, सो द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग are partial pressure of the carbon dioxide, proton concentration, pH and the temperature. Now let us look into the transportation of carbon dioxide. Okay. Now transportation of carbon dioxide. The carbon dioxide is transported within our body in 3 forms. सबसे पहला वाला है in dissolved form in the plasma and it is 7%. Now do you see one thing? ऑक्सीजन का बहुत कम था 3% and कार्बन डाइऑक्साइड का 7% है. Why is it so? Because कार्बन डाइऑक्साइड is 20 to 25 times more soluble than oxygen. Okay. The second is as bicarbonate ions. और ये see these two is how it is carried in the RBC. एक तो वो RBC में घुस गया, RBC में घुसने के बाद it forms bicarbonate ions. Okay, and 70% of the carbon dioxide is carried that way. So what happens inside the RBC? Carbon dioxide combines with the water in presence of the enzyme carbonic anhydrase. Okay, it first forms carbonic acid, और ये carbonic acid it dissociates to form carbonate ion and protons. Clear है? So again reversibly they will combine to form carbonic acid and again it will break into water and carbon dioxide. Clear है? तो when at the tissue level this is what is happening. फिर ये हो रहा है, this is how it is being transported by the RBC, and when it comes to the alveoli for the release, the entire reaction reverses and carbon dioxide is released. Clear? Next is as carbaminohemoglobin. Here this is 23% of the carbon dioxide is carried this way. Now here the carbon dioxide binds with the free amine radicals of hemoglobin. Clear है? This binding is also very unstable and it binds very easily and the carbon dioxide is released. Okay, so these are the 3 ways by which carbon dioxide is transported within our body. These 2 are within RBC and this is in the plasma. All clear?
सो नाउ लेट अस लुक इनटू द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हम कभी ज़्यादा रेस्पायर कर रहे हैं, कभी कम रेस्पायर कर रहे हैं, हु इज कंट्रोलिंग ऑल दैट? ओके, सो नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। Regulation means what? To look over a process to make sure that it is going the way it is. तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि regulation of respiration, what does it mean? Regulation means यहाँ दो लेवल पे रेगुलेट करना। एक तो हम जो रेगुलर सांस ले रहे हैं to maintain that rhythm, okay, to maintain the regularity. दूसरा क्या है? When our body requirement changes, so does the रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कभी कभी हम बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं, सो देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम समवेयर इन द बॉडी विच डज दैट रेगुलेशन, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस टॉपिक। नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैन अकर एट टू लेवल्स, या इट इज रेगुलेटेड बाय टू वेज। एक है न्यूरल, दूसरा है केमिकल। क्लियर है? तो लेट अस फर्स्ट लुक एट द न्यूरल वन। सो फर्स्ट इज न्यूरल रेगुलेशन। नाउ इन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन में देयर आर सम सेंटर्स प्रेजेंट विच आर कॉल्ड और विच आर रेफर्ड टू एज द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स एक्चुअल होता क्या है? दीज आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स दो जगहों में होता है। वन इज इन द मेड्यूलरी रीजन, अनदर इज इन द पॉन्स। सो यहाँ पे ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं, वेरी रफ स्केच ऑफ ब्रेन डायग्राम। ओके, सो लेट्स थिंक दिस इज आवर ब्रेन। यहाँ पे पॉन्स वेरियोली है, हियर वी हैव द सेरेबेलम एंड दिस इज द मेड्यूला ऑब्लंगेटा। हमने खाली अपने काम का ही जो चाहिए वही बनाया है। ओके, दिस इज द पॉन्स वेरियोली, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ना मेड्यूला में क्या क्या है? मेड्यूला में देयर आर टू रीजन्स, और मेडुला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है दे आर रेफर्ड टू एज द मेड्यूलरी रेस्पिरेटरी सेंटर या द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, एंड दीज आर टू इन नंबर्स। वन इज कॉल्ड द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, द अदर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज द डोर्सल साइड, तो ये हो गया द DRG एंड दिस इज द VRG। ओके, तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दीज आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और यही सिग्नल्स को पास करते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट द रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो होता क्या है, यहाँ से द नर्व्स आर कमिंग एंड दीज आर द लंग्स। एंड दिस इज द डायफ्राम। तो DRG जो होता है, इट प्राइमरीली कंट्रोल्स द या इट इग्नाइट्स द इंस्पिरेशन। ओके, तो यहां से सिग्नल आके डायफ्राम को जाता है एंड दीज आर द रिब्स एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। ओके, क्योंकि इंस्पायरेशन को रेगुलेट करते हैं। दे हैव ओनली द इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। क्लियर है? Now let us come to ventral respiratory group. This has both the inspiratory as well as the expiratory neurons. यानी ये इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को ही रेगुलेट करते हैं। सो यहाँ का जो न्यूरॉन्स होता है, दे कम एंड इनर्वेट द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है? और इस तरह से द both of them they regulate the respiration and the respiration rhythm on a regular basis, जो हमारा हमेशा का breathing होता है, this one. Okay, now हम हमेशा तो ऐसा breathe नहीं करते, our breathing changes, right? So who regulates that? अब हम आते हैं pons पे।
Now the pons is here और यहाँ पे there are two such regulatory centers. The first one is called pneumotaxic center. Clear? This is the one. Okay. Now how does pneumotaxic center work? The pneumotaxic center does not directly work here. It works via this. मतलब क्या कि it regulates the working of these respiratory centers to alter the duration of inspiration. हमें जब ज़्यादा सांस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, how do we breathe? Our inspiration का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, that उसका लेंथ लंबा होता है, एक्सपायरेशन का नहीं, राइट? सो इट इज़ ऑलवेज द रेगुलेशन ऑफ द इंस्पिरेशन. डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन इज चेंज्ड. से जैसे हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एक्सपायरेशन छोटा होता है, इंस्पायरेशन लंबा. क्लियर है? सो दिस इज हाउ इट हैपन्स. कभी ऐसे देखा है कि आप बहुत दौड़ रहे हैं एंड यू आर ब्रीदिंग दिस वे? नो. दूसरा यहां पे सेंटर है विच इज कॉल्ड द एप्नोस्टिक सेंटर. एप्नोस्टिक सेंटर ये हो गया. दिस वर्क्स इन एसोसिएशन विथ न्यूमोटैक्सिक सेंटर. और ये भी क्या करते, ये भी प्राइमरीली इन दोनों को ही रेगुलेट करते हैं. एंड हाउ डू दे रेगुलेट? यहाँ एप्नोस्टिक सेंटर से जो सिग्नल्स मिलता है उससे भी ड्यूरेशन, वो उनका काम क्या होता है, खाली इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करना. सो दिस इज हाउ न्यूरली आवर रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि whenever एक तो रेगुलेशन हो रहा है एट द रेगुलर रिदम, ओके, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूलरी सेंटर पे जो भी है, मेड्यूलरी ऑब्लोंगेटा पे जो भी रेस्पिरेटरी सेंटर्स है. और उनको कौन कंट्रोल करता है या उनको कौन रेगुलेट करता है? द पॉन्स वेरियोली पे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है. सो देयर आर टू, वन इज न्यूमोटैक्सिक, अनदर इज एप्नोस्टिक. और जब रेगुलेट करते हैं, नॉट द रेगुलर रेस्पिरेशन, बट व्हेन इट हैज टू बी ऑल्टर्ड, व्हाट इज ऑल्टर्ड? इट इज ऑलवेज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. एक्सपायरेशन का कभी लंबा नहीं करते. ओके, हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि हम योगा के लिए वो सब करते हैं, बट दैट इज वॉलेंटरी. ओके, सो ऑल क्लियर एंड डन विथ न्यूरल रेगुलेशन. समझ में आया? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, now let us look into the chemical regulation of respiration. Now chemical regulation of respiration. तो केमिकल रेगुलेशन जब हो रहा है किसी चीज़ का, तो कुछ ना कुछ केमिकल रिसेप्टर्स या केमो रिसेप्टर्स तो चाहिए ही चाहिए. बिकॉज केमिकली अगर आप कुछ चीज़ को रेगुलेट करते हैं, सो यू नीड दोज रिसेप्टर्स टू मॉनिटर द लेवल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. क्लियर है? तो यहाँ पे केमो रिसेप्टर्स कहाँ पे होता है? ओके, सो केमो रिसेप्टर्स एक तो होता है केमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेड्यूला. तो यहाँ पे ओके, देयर इज अ केमो सेंसिटिव एरिया. तो यहाँ पे केमो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं. क्लियर है? दूसरा, हमें केमो रिसेप्टर्स कहाँ देखने को मिलता है? दूसरा हमें केमोरिसेप्टर्स कहाँ देखने को मिलता है? इन कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी. तो ये है क्या? नाउ दिस इज द हार्ट. ओके, दिस इज आवर हार्ट, अ रफ स्केच. और ये एओर्टा है. क्लियर है? यहां से the arteries are coming out. So this is the carotid artery. Carotid artery supplies the blood to the brain. तो carotid artery में there are these carotid bodies. Okay. These are the.
कैरोटिड बॉडीज में द केमोरिसेप्टर्स आर सिचुएटेड। दूसरा ये एओर्टा है, एओर्टा में भी कुछ कुछ एओर्टिक बॉडीज हैं। ये एओर्टिक बॉडीज आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ द केमिकल रिसेप्टर्स। ओके, तो इसके अंदर भी क्या है, केमिकल रिसेप्टर्स, राइट। तो ये तो हो गए रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या रिसीव करते हैं, व्हाट आर द सिग्नल्स दैट दे पिक अप। दे पिक अप द सिग्नल फ्रॉम वेयर, कहां से करते होंगे, जो हवा ले रहे हैं हवा से तो नहीं करते हैं। दे ऑलवेज पिक अप द चेंजेस इन द ब्लड, and what are the changes they look for, change in the pH। और कौन से कब, when do they get triggered, when the pH is lowered or pH becomes more acidic। okay, तो pH कम कब होता है या pH acidic कब होता है, when proton concentration goes high। और प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई होता है। ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनता है, कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा तो वो डिसोसिएशन करके बाइकार्बोनेट आयंस एंड प्रोटॉन्स भी ज्यादा बनाएगा, राइट। एंड दैट इज व्हेन these changes are occur, and this change is picked up from the blood by the carotid bodies, aortic bodies, and then they send the signal to the brain। clear है। now one thing, if they are sending the signal to the brain, SMS WhatsApp तो करके भेजते नहीं होंगे, there has to be a connection। so what is going to be the connection, of course न्यूरल ही होना है, नर्व से ही भेजना है यहाँ पे, राइट, बिकॉज द सिग्नल हैज टू बी सेंट वेरी फास्ट। तो एओर्टिक बॉडी से जो नर्व ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचा रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेगस नर्व। और कैरोटिड बॉडी से जो ब्रेन को जो नर्व सिग्नल पहुंचा रहा है, दैट इज द ग्लोसोफेरिंजियल cranial nerve। okay, so chemical regulation is also very easy। chemoreceptors इन जगहों पे होता है और यहाँ पे भी होता है। they pick up the what changes in the chemical। what are the changes that they mainly pick up, change in the pH in the blood when the pH starts turning acidic। और pH acidic कब होने लगता है, this is the reaction। so they are sensitive to high carbon dioxide presence, high proton presence, as a result of which the pH alters, it becomes acidic, and that is when they get triggered। very easy, very clear। जैसे उन्होंने ये सिग्नल पिकअप किया, सिग्नल को इन दोनों नर्व से ब्रेन को भेज दिया, and now the brain will again send the signal to the respiratory rhythm centers, and accordingly they will regulate। clear है। now कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट, इंस्पिरेशन को बढ़ाओ, ऑक्सीजन ज्यादा लो। क्लियर है। सो वन थिंग हमने जो पढ़ा न्यूरल में एज वेल एज केमिकल में, व्हाट आर द थिंग्स वी सी कि रेगुलेशन इज ऑलवेज डन बाय ऑल्टरिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, नंबर वन। और इन सब चीजों में ऑक्सीजन का कहीं नाम आया, ऑक्सीजन का कहीं भी नाम नहीं आया। सो व्हाट डज दिस मीन कि ऑक्सीजन हैज वेरी लेस रोल टू प्ले इन द रेगुलेशन ऑफ दिस। ओके, हम सांसें फुलाते हैं, सांसें लेते हैं, जोर जोर से लेते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, बट वो रेगुलेट होता है फ्रॉम द ऑपोजिट वे। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन को लाओ। क्लियर है, गॉट इट। वॉज द रेगुलेशन ईजी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर समझ में आया देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के लिए एक छोटा सा वीडियो होगा। ओके,
Till then, take care of yourself and I'll see you again in the next video. Bye.